پپلا کے ریل بازار میں صفائی کا نظام درہم برہم ہو گیا، گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں راؤ عمران۔ پپلا کے ریل بازار میں نکاسی آب کا مسئلہ سنگین صورت اختیار کر چکا ہے۔ شہریوں اور دکانداروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیوریج کے ایشو بھی ریل بازار پپلا کے پرانے ہیں، بارہا ٹینڈر لگنے کے باوجود بارہا غفلت کی گئی اس کام میں، تو ہماری اسسٹنٹ کمشنر پپلا سے بھی گزارش ہے اور جتنے بھی اس کے ذمہ داران ہیں کہ اس بازار کو بھی ایک تو ٹف ٹیل کی سہولت مہیا کی جائے اور سیوریج نئے سرے سے نصب کی جائے۔ مین بازار میں جگہ جگہ گندا پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے شہری بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ بدبو کی وجہ سے تاجروں کا دکان میں بیٹھنا بھی مشکل ہو گیا۔ ہمارا یہی گزارش ہے انتظامیہ سے، اسسٹنٹ کمشنر سے گزارش ہے کہ یہ جو سے گلی کے مسائل پڑے ہیں، گندگی پڑی ہے اور ادھر اسمیل بہت زیادہ ہے، اسمیل کی وجہ سے بیٹھا بھی نہیں جاتا اور کوئی گاہک بھی نہیں آتا۔ تاجروں نے تحصیل اور ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ ریل بازار میں صفائی ستھرائی کی حالت بہتر کی جائے تاکہ ہم سکون سے اپنا کاروبار کر سکیں۔ انتظامیہ کی عدم دلچسپی، سرائے مغل میں سیوریج کا سسٹم جواب دے گیا، گلیاں سیوریج کے پانی سے بھر گئیں، راہگیروں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ غلام علی کی رپورٹ۔ یہ سرامگو کا نواحی گاؤں سوکن نہر ہے جو کہ ضلع قصور میں ایک اپنی پہچان رکھتا ہے، جو کہ بنیادی سہولتوں سے محروم ہے۔ گاؤں برساتی نہر کے اوپر آباد ہے اور برساتی نہر کا حال کچھ یوں ہے، اس کی بھل صفائی نہ ہونے کی وجہ سے یہ بالکل بند ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے سیوریج کا پانی گھروں میں داخل ہو جاتا ہے اور مقامی لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ جنہوں نے ووٹر دے رہے ہیں انہوں کا حق سارا کا بنتا ہے کہ ساری تکلیف رفع کرن کہ یہ نہ ہو کہ سانو مطلب پانی چاہ کے سپ مطلب لنگن لگیا سانو سپ ڈنگ جان۔ محکمے والوں کئی بار درخواست کی ہے، کوئی کھٹائی نہیں ہو رہی، پانی خراب ہو گئے نے سارے، پین والا پانی نہیں رہ گیا، جانور وچ وڑ جے باہر نہیں نکل سکتا۔ مقامی لوگوں نے ضلع انتظامیہ سے اس نہر کی بھل صفائی کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا یہی مطالبہ ہے کہ جتنی بھی یہاں کی متعلقہ انتظامیہ ٹی ایم اے کا عملہ ہے وہ جلد اور جلد اس کے اوپر جو ہے وہ فی الفور ایکشن لے اور اس کا جو بھل صفائی کا کام ہے وہ شروع کروائے تاکہ یہاں کے جو بچے ہیں اور یہاں کے جو بڑے لوگ ہیں وہ بے شمار بیماریوں سے بچ سکیں۔ کیمرامین فقیر حسین کے ساتھ غلام علی، سچ ٹی وی، سرائے مغل۔ ناروال کی اہم شاہراہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہیں، منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہونے لگا ہے۔ رپورٹ جانتے ہیں سید ذخیر حسین شاہ کی۔ حال ہی میں سابق ایم این اے اور ایم پی اے بننے والے سیاستدانوں کے گھر کے آگے 18 کروڑ کی لاگت سے سیوریج ڈال کر من پسند ٹھیکیدار اسی طرح کام چھوڑ کر بھاگ گیا۔ عوام 4 سال سے پریشان ہے، گندے پانی اور کیچڑ وغیرہ کا سامنا کر رہے ہیں۔ 4-5 سال تو زیادہ عرصہ ہو گیا تھا ایویں اپنا جا رہا کوٹلی پلاٹ روڈ ریپ تقریباً انہوں پی رہا رضویہ کلونی مین اور اس بعد کوٹلی پلاٹ آ رہا ہے۔ سابق حکومت 16 ماہ میں یہ کام مکمل کر سکتی تھی کیونکہ یہ پبلک کا کام تھا، مگر اسی طرح کوئی توجہ نہ دی گئی۔ محکمہ پبلک ہیلتھ کی غفلت اور ٹھیکیدار کی نالائقی کی وجہ سے ناقص مٹیریل بھی استعمال ہوا۔ محکمہ شاہرات نے اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑ لیا، جنڈ کی رابطہ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، سڑک پر جگہ جگہ گڑھے پڑ گئے، راہگیروں کو گزرنے میں بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ جنڈ نکا چوک تہدو والی روڈ عرصہ دراز سے خستہ حالی کا شکار ہے، جگہ جگہ پر گہرے گڑھے بن چکے ہیں، کئی جگہوں سے تو روڈ کے نشانات بھی مٹ چکے ہیں، منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہوتا ہے۔ شہریوں کو روڈ کی خستہ حالی کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ہم جس روڈ پر کھڑے ہیں یہ نکا چوک سے ہدوالی تک ہے اور اس کی حالت آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے کہ یہاں پہ گاڑیوں کا گزرنا تو بہت ہی مشکل ہے، عام آدمی اگر کوئی پیدل گزر رہا ہے تو وہ بھی نہیں گزر سکتا ہے۔ یہ سڑک ہے نکا چوک تہدو والی جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اس پہ گاڑیوں کا گزرنا کیا، جب مریض میں پہ لے جاتے ہیں تو راستے میں دم توڑ جاتے ہیں۔ شہریوں نے ارباب اختیار سے نکا چوک تہدو والی روڈ کی جلد از جلد تعمیر نو کا مطالبہ کیا ہے تاکہ ان کی سفری مشکلات آسان ہو سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حافظ محمد شفیق، جنڈ اٹک۔ کمالیہ میں سیوریج سسٹم ناکارہ ہو گیا، سڑکیں گندگی کے جوہر میں تبدیل ہو گئیں، ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر سفر کرنا شہریوں کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں۔ اسی پر دیکھتے ہیں اسد راجپوت کی رپورٹ۔ کمالیہ سبزی منڈی روڈ عرصہ دراز سے مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس کے باعث راہگیروں سمیت منڈی میں آنے والے کسانوں اور آڑھتیوں کو شدید مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ بارش کے بعد روڈ کسی تالاب کا منظر پیش کرتا ہے، روڈ پر سیوریج کا گندا پانی بھی نکل آیا ہے، جس کے باعث شہری متبادل راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہیں، جبکہ اعلیٰ حکام کو متعدد بار آگاہ کرنے کے باوجود کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ اتنے منڈی والے دھکے کھاندے آ، شہری گزرتے گندا پانی ہے، سارا شہر دا تقریباً پانی اس روڈ تے آਉਂدا۔ کوئی بندہ منڈی دے وچ اندر نہیں جا سکدا، اے بھی منڈی دے وچ جدوں بارش ہو جاندی ہے کچا سارا ہے، ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਆ
ये रोड बन जाए और मंडी बाहर जानी चाहिए। शहरियों का कहना है कि ये रोड तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल को भी जाता है। सीवरेज मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुकी है और सीवरेज के गंदे पानी से ताफुन और बदबू के बायस सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है। मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जन्म ले रही हैं। गंदे पानी के बायस दुकानदार और शहरी शदीद अजियत में मुब्तला हैं। शहरियों ने आला हुकाम से इस सूरत हाल पर फिल फॉर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, साच न्यूज़ टीवी, कमाली। गिलगित बल्तिस्तान में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ अपने मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज हैं। हस्पताल और क्लिनिक्स बंद होने की वजह से मरीजों को दुश्वारी का सामना है। वजाहत अली की रिपोर्ट। ग्रैंड हेल्थ अलायंस गिलगित बल्तिस्तान की कॉल पर गिलगित बल्तिस्तान भर में छोटे बड़े तमाम अस्पतालों समेत क्लिनिक्स भी मरीजों के लिए बंद हो गयी। डॉक्टरों का कहना है कि 3 मुतालिबात है। चीफ सेक्रेटरी काबीना के फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं, वरना मजीद सख्त एहतजाज होगा। इस महंगाई के दौर में कोई दूर से 3-3, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार गाड़ियाँ बुक करके इधर आके ख्वार होके वापस जा रहे हैं। जुल्म नहीं करो, कहीं ऐसा ना हो कि हम रोड पे आ जाएं, मरीज लेके बेड के साथ बाहर निकलेंगे रोड पे। मरीजों का कहना है कि अस्पतालों में एहतजाज की वजह से आम आदमी के मसाइल में इजाफा हो रहा है। हजारों रुपए खर्च करके अस्पताल आए हैं, यहाँ एहतजाज है, हम कहाँ जाएं? हुकूमत डॉक्टरों के मसाइल हल करे, वरना डॉक्टरों के साथ मिलकर एहतजाज करेंगे। वजाहत अली, सच न्यूज़, गिलगित। बटग्राम में यूसी बट्टा मोड़ी के मकीन महकमा वापडा के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने शाहराह रेशम को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मजीद जानते हैं नसीम स्वाति की इस रिपोर्ट में। बटग्राम में बिजली काटने के खिलाफ यूसी बटामोड़ी के मुख्तलिफ वीसीज राजमेरा, हबीब बांडा और बटामोड़ी शमाली के हजारों मकीन महकमे वापडा के खिलाफ शहर रेशम पर निकल आए। शहर रेशम पर धरना देकर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। शहर रेशम कई घंटों के बंदिश के बायस गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग गई। इस दौरान मुसाफिरों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वापडा वालों की अपनी नाअहली जो है वो छुपा रहे हैं। ये वापडा वालों की अपनी नाअहली है। ये पूरे इलाके से इन्होंने जो है बिजली बंद की हुई है। पूरा यूनियन कौंसिल इन्होंने बंद किया हुआ है। बटमोड़ी यूनियन कौंसिल इन्होंने बंद किया हुआ है। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए जारी क्रैकडाउन में महकमे वापडा को अपनी गलतियों को भी सामने रखना होगा। बिजली चोरी हर लिहाज से काबिल मुजम्मत व काबिल गिरफ्त अमल है। जिली इंतजामिया और महकमा वापडा की जिम्मेदारी बनती है कि वो बिजली की रोकथाम के लिए जारी क्रैकडाउन में मकामी लोगों के साथ मिल बैठकर किरदार अदा करें। कैमरा टीम के साथ नसीम स्वाति, सच टीवी, बटग्राम। पाकपतन शरीफ में सैलाब की तबाही के बाद किसानों का बुरा हाल। बिल अदा करने की सिक्कत नहीं रही। वापडा वाले ट्रांसफार्मर उतार कर ले जा रहे हैं। किसानों की दुहाइयां। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद खरल। पाकपतन शरीफ में सैलाब की तबाहकारियों के बाद किसान बेहाल। ऊपर से वापडा वालों ने भारी बेल भेज दिए। किसान परेशान। किसानों की जमात पाकिस्तान किसान इत्तेहाद चौधरी अनवर ग्रुप की हंगामी बैठक, जिसमें पंजाब भर के किसानों के सदूर ने शिरकत की और यही मुतालबा किया कि हुकूमत सैलाबी इलाकों के बिल माफ करे। ये बेचारे कैसे बिल अदा करें? इन गरीब आवाम का तो बचा ही कुछ नहीं। आज यहाँ पाकपतन में असल में बहुत बड़ा एहतजाज था और एहतजाज किस चीज पे था कि जो किसान सैलाब में डूब गए, कर मकान तक गिर चुके हैं, अभी वो वापस अपने घरों में नहीं गए। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद चौधरी अनवर ग्रुप के मरकजी सदर मलिक जुल्फकार अमान का मजीद कहना है कि अगर डूबे हुए किसानों के ट्रांसफार्मर उतारे गए या इनके बिल माफ ना किए गए तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। धरना देंगे। तमाम तर सूरत हाल की जिम्मेदारी फिर इंतजामिया की होगी। किसानों का मजीद कहना है कि अगर हमारे मुतालबात पूरे ना हुए और इंतजामिया ने जो हमारे साथ वादे किए वो पूरे ना किए तो फिर ताज़ा दम होकर धरना देंगे और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। कैमरामैन राशिद अंजरा के साथ नज़ीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ, सच टीवी, पाकपतन शरीफ। मानावाला में सफाई का नाकिस निज़ाम शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। जगह जगह खड़ा पानी मुहलिक बीमारियों को दावत देने लगा। रिपोर्ट कर रहे हैं मियां शेर मोहम्मद जरगर। अब आपको झील देखने के लिए नरान कगान जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे मनाजर आपको मानावाला में जगह जगह दिखाई देंगे। गंदे पानी के जोहर बड़ी बड़ी झीलों का मंजर पेश कर रहे हैं। सीओ म्यूनसिपल कमेटी मानावाला की मुबैना गफलत और लापरवाही की वजह से बहुत से लोग डेंगू और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुबतला होने लगे। हर जगह आपको गंदगी के ढेर और गंदे पानी के जोहर नजर आएंगे। साडी दरख्वास्त है कि साडे घरां के पानी बहुत ज्यादा आया गया है। कमेटी वाले साडे नाल बिल्कुल तावन नहीं कर रहे कि जल्द से जल्द पानी कढ़ाया जाए। पानी की एडी कोई बदबू है। इस बदबू की वजह से साडे छोटे छोटे बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हो चुके हैं। दूसरी तरफ मानावाला के शहरियों ने म्यूनसिपल कमेटी को कई बार इतला की, लेकिन अमले की जानिब से टाल मटोल से काम लिया जाने लगा। इस पर मानावाला के शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मियां शेर मोहम्मद जरगर, नुमाइंदा सच न्यूज़, मानावाला।
آپ کو بتائیں کہ ٹنڈو جام میں پینے کے صاف پانی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ اہل علاقہ مضر صحت پانی کے استعمال سے بیمار پڑنے لگے ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ دیکھتے ہیں جنید علی بھٹی کی رپورٹ۔ 50,000 سے زائد کی آبادی پر مشتمل ٹنڈو جام کی عوام کا پینے کا صاف پانی کا دیرینہ مسئلہ حل نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے بڑے آبادی رکھنے والے علاقے کے 70% عوام آلودائی اور گندا پانی پینے پر مجبور ہیں، جس کی وجہ سے شہری مختلف وبائی امراض میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ شہر کے ملازم پیشہ دکاندار 30% افراد مختلف فلٹر پلانٹ سے مہنگے داموں صاف پانی خریدنے پر مجبور ہیں۔ پچھلے 10-12 سال سے ہم پانی کے لیے پریشان ہیں۔ یہ واٹر سپلائی مینجمنٹ کی نااہلی ہے، ہماری سندھ گورنمنٹ کی نااہلی ہے کہ جو ابھی تک ہم پانی سے محروم ہیں۔ ٹنڈو جام کے قریب موسیٰ کھٹیان روڈ پر حکومت سندھ کی جانب سے بنائے جانے والے فلٹر پلانٹ کا کام گزشتہ 10 سالوں سے انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث مکمل نہ ہو سکا ہے، جبکہ آلودائی پانی کے استعمال سے شہری وبائی امراض میں مبتلا ہو گئے ہیں، جبکہ شہری میٹھے پانی کی بوند بوند کو بھی ترس گئے ہیں۔ مہنگائی کی زنجیروں میں جکڑتی ہوئی غریب عوام مختلف فلٹر پلانٹ سے مہنگے داموں پانی خریدنے پر مجبور ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لے کر فلٹر پلانٹ کا کام مکمل کروا کر ٹنڈو جام کی عوام کو پینے کا صاف پانی میسر کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین فراز شیخ کے ساتھ جنید بھٹی، سچ نیوز، ٹنڈو جام۔ مر کے بھی چین نہ پایا تو کہاں جائیں گے؟ چنی گوٹ کا قدیمی قبرستان 4 دیواری سے محروم ہے۔ قبرستان میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگ گئے۔ اسی پر دیکھتے ہیں محمد صدیق خان کی رپورٹ۔ چنی گوٹ شہر کے قدیمی قبرستان کی صفائی اور 4 دیواری نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتح خوانی اور تدفین کے لیے آنے والے شہریوں کے لیے خاطر خواہ سہولیات اور انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے پریشان۔ انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی کے ساتھ ساتھ محلے داروں نے بھی اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ کوڑا کرکٹ ڈالنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اپنے جانور بھی باندھنا شروع کر رکھے ہیں۔ کوئی پانی دا انتظام کہنی نلکے دے ہتھیاں تک پٹ کی دے گئے نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ سارا وقت حکومت نال مطالبہ ہے کہ ان قبرستان دی 4 دیواری بنوائی ونجے۔ شہریوں کا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ چنی گوٹ شہر کے قدیمی قبرستان کی 4 دیواری کے ساتھ ساتھ چاروں اطراف کوڑا کرکٹ نال ڈالنے کے بینر بھی آویزہ کیا جائیں۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ محمد صدیق خان، سچ نیوز، چنی گوٹ۔ سکھر اسلامیہ کالج کی اراضی پر قبضے کا معاملہ معمہ بن کر رہ گیا۔ سول سوسائٹی، طلبہ اور دیگر نے احتجاج کرتے ہوئے اپنے احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیا۔ دیکھتے ہیں زاہد شیخ کی رپورٹ۔ گورنمنٹ اسلامیہ سائنس کالج کی زمین پر قبضے کے خلاف کالج کے طلبہ اور بچاؤ کمیٹی اور سماجی شخصیت کی جانب سے اسلامیہ کالج سے ڈپٹی کمشنر آفس تک ریلی نکالی گئی، جہاں ریلی کے شرکاء نے ڈی سی آفس پہنچ کر انتظامیہ اور قبضہ مافیا کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہمارا مستقبل اس کالج سے جڑا ہے، کالج کی زمین پر قبضے کے خلاف خاموش نہیں بیٹھیں گے، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر صوفیہ راؤ کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ تمام تر معاملے کو دیکھ رہے ہیں، تمام تر معاملے میں انتظامیہ کا ملوث ہونا سب بے بنیاد باتیں ہیں۔ یہ بالکل میں اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتی کہ انتظامیہ ملوث ہے۔ میں آپ کو بھی بتایا کہ میں نیو آئی ہوں، میں ریکارڈ چیک کر رہی ہوں، ہمارا کسی سے کوئی پرسنل لنک نہیں ہے۔ ہم وی آر ورکنگ فار دا اسٹیٹ، ٹھیک ہے، ہم لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم اسٹیٹ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میں یہاں ہوں یا میں کہیں بھی ہوں، مجھے اسٹیٹ کے لیے کام کرنا ہے، تو یہاں پر کسی قسم کی کوئی کسی کے ساتھ ملوث نہیں ہے۔ آج جو ہمارا احتجاج ہے اسلامیہ کالج کے قبضے کے خلاف ہے، کیونکہ اسلامیہ کالج کے اب اندر قبضہ ہو رہا ہے، پہلے تو باہر آس پاس قبضہ ہو گیا تھا۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ اسی کالج سے کتنے بیوروکریٹ MNAs MPs پڑھ کر گئے ہیں، حکومتی نمائندوں اور انتظامیہ کی ملی بھگت سے قبضے کیے جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ باشعور شہریوں کی خاموشی کی وجہ سے قبضہ مافیا طاقتور ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس معاملے پر خاموش نہیں بیٹھیں گے، اپنی طرزگاہ کا تحفظ کریں گے اور قبضہ مافیا کو بھگا کر دم لیں گے۔ کیمرامین اشفاق کھوسو کے ساتھ زاہد شیخ، سچ نیوز، سکھر۔ خانیوال کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں سیف فوڈ پروجیکٹ کے تحت نیوٹریشن کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس کے اوپر دیکھتے ہیں سلمان فرید وڑائچ کی رپورٹ۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے زیر اہتمام DHQ اسپتال کے OPD وارڈ میں سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت نیوٹریشن کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنل پنجاب فوڈ اتھارٹی CO ہیلتھ ڈاکٹر عبدالمجید بھٹی AC خانیوال نوید احمد نے شرکت کی۔ غذائی ماہرین نے ملاوٹ سے پاک محفوظ خوراک کی افادیت کے حوالے سے اسپتال میں موجود مریضوں اور شرکاء کو غذائی مشورے دیے۔ ہم نے جو سیف فوڈ سٹی پروجیکٹ لانچ کیا ہے، اسی کے تسلسل میں ہم نے یہاں نیوٹریشن کیمپ لگایا ہے، جو ڈپٹی کمشنر خانیوال اور CO ہیلتھ کی کوآپریشن سے۔ تو بیسیکلی اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم متوازن غذا کے ذریعے کیسے ہم صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ بہت ساری ایسی غذائیں ہیں جن کو ہم پراپر مقدار میں استعمال کریں
तो हमारी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी भी नहीं होंगी। हमारे जो बच्चे हैं उनमें स्कर्वी की जो है, जो ब्लीडिंग गम्स की डिजीज है, हम उनसे भी बच सकते हैं। आगाही मुहिम का आगाज़ किया है जिसमें लोगों को बताया जा रहा है कि आप अच्छी ग़िज़ा खाएंगे तो जिससे आपके ये फिज़िकली 50 से 60% मसाइल हल हो सकते हैं। उसके लिए हॉस्पिटल आने की भी ज़रूरत नहीं होगी। न्यूट्रिशन कैंप में तिब्बी माहिरीन ने मरीजों और शुरा की बड़ी तादाद के कद, वजन और जिस्म में मौजूद चर्बी के मुआयने किए और ग़िज़ाई माहिरीन ने गैर मियारी खुराक के इंसानी सेहत पर पड़ने वाले असरात और उससे पैदा होने वाली बीमारियों के बारे में आगाही दी। कैमरा टीम के हमरा सलमान फरीद वड़ैच, सच न्यूज़, खानेवाल। हरिपुर में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं नईमुल्ला खान। खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे अजला की तरह हरिपुर में भी पोलियो मुहिम का आगाज। डिप्टी कमिश्नर हरिपुर ओन हैदर गोंदल ने अपनी निगरानी में बच्चों को पोलियो कतरे पिलाए। ये आपके बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। एक ऐसी बीमारी से ये आपको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं ये कतरे के जो। हरिपुर पुलिस की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात किए गए। SHOs अपनी हदूद में पोलियो टीमों की बराह रास्त निगरानी करेंगे। एडिशनल SP हरिपुर और सर्कल SDPO हरिपुर ने वक्तन फवक्तन पुलिस टीमों की खुद सिक्योरिटी का जायजा लिया और सिक्योरिटी पर तैनात अफसरों और जवानों को हदायत दी कि अपनी ड्यूटी अलर्ट होकर करें ताकि पुरअमन तरीके से पोलियो मुहिम इख्तिताम पजीर हो सके। कैमरामैन टीम के साथ नईमुल्ला खान, सच TV, हरिपुर। पोलियो से पाक पाकिस्तान। पाकपतन शरीफ में भी इंसदादे पोलियो मुहिम जारी है। जिला भर में 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। AD शाहिद की रिपोर्ट। कई दहाइयों से इंसानी जिंदगी को मुतासर करने वाला खतरनाक पोलियो वायरस आज तरक्की के इस दौर में भी इंसानी सेहत पर बुरी तरह से असरअंदाज हो रहा है। इससे बचाव के लिए हर साल की तरह इस वक्त भी पाकपतन में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। महकमा सेहत के मुताबिक जिला भर में 5 साल तक की उम्र के 3,82,628 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, जिसके लिए 3,516 पोलियो वर्कर्स अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं। पोलियो एक लाइलाज मर्ज है, इसका इलाज मुमकिन नहीं है। अगर आप अपने बच्चों को ताहयात मजूर होने से बचाना चाहते हैं तो अपने पैदाइश से लेकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स पिलाएं और माएँ एहतियात से और पूरे टाइम के हिसाब से अपने बच्चों को हिफाजती इंजेक्शन ज़रूर लगवाएं। पोलियो एक खतरनाक वायरस है जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों पर हमला आवर होता है और उन्हें उम्र भर के लिए माजूर बना देता है। ये मर्ज लाइलाज है, मगर इससे बचाव पोलियो के कतरों और हिफाजती टीकों से ही मुमकिन है। पोलियो एक खतरनाक वायरस है जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों पर हमला आवर होता है और उन्हें उम्र भर के लिए माजूर बना देता है। लिहाजा ये मर्ज लाइलाज है, इससे एहतियात कीजिए, अपने बच्चों को बचाइए। कैमरा टीम के साथ AD शाहिद, सच न्यूज़, पाकपतन। महंगाई के सताए अवाम को रिलीफ न मिल सका। सनावा में LPG की कीमतें आसमान को छूने लगीं। घरेलू सार्फिन के लिए खाना बनाना भी मुश्किल हो गया। मुनीर हुसैन की रिपोर्ट। हुकूमत का अवाम पर यके बाद दिगरे महंगाई के बम गिराने के बाद अब LPG गैस की कीमतों में इजाफे का बम भी अवाम पर गिरा दिया। सुई गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर से सताई अवाम अब LPG गैस की पहुंच से भी दूर होती जा रही है। घरेलू सार्फिन के इस्तेमाल होने वाला सिलेंडर 250 रुपए और कमर्शियल में इस्तेमाल होने वाला सिलेंडर 1000 रुपए में इजाफा कर दिया गया। कई तूफान दर तूफान, घर बर्बाद, सुकून बर्बाद और अब कारोबार भी बर्बाद होने के नजदीक है। पहले अब आपटा वालों ने जो लॉलीपॉप दिया बिलों के बारे में वो पूरा हुआ नहीं। LPG गैस की कीमतों में इजाफे से घरेलू सार्फिन के साथ साथ छोटे दुकानदार भी शदीद परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत का एक चीज में थोड़ी सी कमी करके दूसरी अशा की कीमतें बढ़ा देती है कि गैस की कीमतों में LPG गैस की कीमतों में कमी की जाए ताकि शहरी सुख का सांस ले सके। मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनामा। हाय ये महंगाई, शहरियों की जान पर बन आई। ठल हमजा में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। जमीन पर उगने वाली सब्जियां आसमान से बातें करने लगी हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद इलियास। ठल हमजा और गर्दनवा में महंगाई का जन बोतल से बाहर निकल आया। महंगाई ने दिहाड़ीदार तबका की कमर तोड़कर रख दी। ठल हमजा में जमीन पर उगने वाली सब्जियों के रेट आसमान को छूने लगे। दिहाड़ीदार तबका गोश्त की में तो दूर की बात, सब्जियों के खाने को तरसने लगे। सब्जियों के रेट सुनकर गरीब का पेट भर जाने लगा। सब्जी फरोशों की अपनी मनमानियां, हर दुकानदार का अपना अपना रेट मुकर्रर। कोई रेट लिस्ट आवेजाना है, अगर कहीं रेट लिस्ट लगी है तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और के मुतरादिफ है, क्योंकि प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजर आम से गायब है। गरीब आदमी से सारा दिन मेहनत मजदूरी करने से मजदूरी 500 झाड़ी नहीं मिलती। सब्जी गिनण वन तो सब्जी दे और रेट थे खड़न जैसे कोई हद अंदाज का नहीं।
महंगाई की चक्की में पिसी आवाम ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि महंगाई पर कंट्रोल किया जाए, मसनूई महंगाई पैदा करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। कैमरामैन शाहिद जावेद सियाल के साथ मोहम्मद इलियास, सच न्यूज़, टोलमजा। हारूनाबाद में खाद का बहरान बदस्तूर जारी है। खाद माफिया किसानों को दोनों हाथों से लूटने लगे हैं। खाद की अदम दस्तयाबी के सबब फसलें तबाह होने का खदशा है। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं अरशद अली गौरी। हारूनाबाद के किसानों ने गंदम की बुआई की तैयारियां शुरू कर दी। इसके साथ ही गंदम की बुआई के वक्त इस्तेमाल होने वाली खादें मार्केट से गायब होना शुरू हो गईं। हर साल की तरह इस बार भी नजायज मुनाफाखोर सरगर्म है, मगर मुकामी इंतजामिया नजायज मुनाफाखोरी को रोकने में मुकम्मल नाकाम नजर आ रही है। खाद की मनमानी कीमत वसूल करने के लिए खाद मार्केट से गायब कर दी जाती है। वो इंतजामिया जो किसानों के घरों में मौजूद गंदम और किसान ने अपने खाने और बीज के लिए रखी होती है, छापे मारकर निकलवाती है और किसानों को जुर्माने किए जाते हैं, जबकि खाद माफिया के आगे इंतजामिया बेबस नजर आ रही है। हारूनाबाद और गिरदोनवा में महंगी खाद की फरोख्त धड़ल्ले से जारी है। पहले ही जरी अखराजात आसमान से बातें कर रहे हैं, ऊपर से महंगी खाद ने किसानों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। महंगी खाद इस्तेमाल करना छोटे किसानों के लिए वैसे भी मुमकिन नहीं रहा, जिसकी वजह से गंदम की फी एकड़ पैदावार में कमी का खदशा है, जो कि किसान के साथ साथ मुल्क के लिए भी नुकसानदा है। इस सिलसिला में किसानों की तरफ से निगरान वज़ीर आला पंजाब से पुरजोर अपील की जाती है कि किसानों को खाद माफिया की मनमानियों से निजात दिलाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद और दूसरे जिम्मेदार अदारों को सख्ती से हिदायत जारी की जाएं। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। तांदलेवाला में महंगाई ने पंजे गाड़ दिए। फलों और सब्जियों के निर्ख बेकाबू हो गए। दिहाड़ीदार तबका महंगाई की चक्की में पिस कर रह गया। देखते हैं मोहम्मद एहसान की रिपोर्ट। तहसील तांदलेवाला में महंगाई का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। दीगर अशिया जरूरिया के साथ फल और सब्जियों की कीमतों में तारीखी इजाफा हो गया। तहसील तांदलेवाला में महंगाई के बादल और गहरे हो गए। फल और सब्जियों की कीमतों में तारीखी इजाफे के साथ दीगर अशिया जरूरिया और अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमां को छूने लगी हैं। महंगाई के बायस सब्जी और मिसाला जात के दाम मजीद बढ़ गए। अदरक 1200 रुपए फी किलो से तजावज, जबकि प्याज 100 रुपए किलो पे पहुँच गया। दीगर सब्जियों में आलू, टमाटर, जबकि गाजर, गोभी और मूली मिर्च की कीमतों में भी मजीद इजाफा हो गया। फलों के दाम दिहाड़ीदार की उजरत से ऊपर, जबकि मजदूर तबका का घर में सब्जी पकाना भी मुश्किल हो गया। महंगाई के बायस मार्केटों की रौनकें मुतासर, दुकानदार ग्राहकों के मुंतजर ज़हनी मरीज होने लगे हैं। फलों और सब्जियों के दाम आम तबका की कुव्वत खरीद से बाहर होते जा रहे हैं। दीगर घरेलू अखराजात के बोझ से परेशान शहरी हुकूमती रिलीफ के मुंतजिर है, जिस पे मुख्तलिफ हलकों ने शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए हुकूमत से महंगाई को फौरी खत्म करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज़, तांदलेवाला। सरसब्ज होगा पाकिस्तान। चित्राल में शजरकारी मुहिम के तहत 3000 दियार के पौधे लगा दिए गए। रिपोर्ट देखते हैं गुल हमाद फारूकी की। महकमा जंगलात चित्राल डिवीजन के ज़ेर निगरानी चित्राल गोल निश्तर पार्क में मानसून की शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। इस मुहिम के दौरान चित्राल गोल निश्तर पार्क के उन मकामात में दियार के 3000 पौधे लगाए जा रहे हैं जो खाली पड़ा था और उस जंगलाती इलाके में बहुत बुरा लगता था। चित्राल गोल निश्तर पार्क के डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर जंगली हयात मोहम्मद अल्ताफ अली शाह के मुताबिक इस पार्क को ये खसूसियत हासिल है कि इसमें पाकिस्तान का कौमी जानवर मरखोर, कौमी दरख्त दियार, कौमी फूल चंबेली और कौमी परिंदे चकोर पाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ वॉचिंग के लिए आते हैं, रिसर्च के लिए आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, इंटरनेशनल रिसर्चर आते हैं, तो ये बहुत बड़ा इफ़ेक्टिव रोल प्ले कर रहा है। अगर हम डिफिनीशन को देखें ना, फॉरेस्ट की डिफिनीशन को देखें तो फॉरेस्ट की डिफिनीशन ही ये है कि आपके पास वुडी वेजिटेशन होगा और उसमें वाइल्ड लाइफ एक कंपोनेंट है। इस मुहिम के दौरान फॉरेस्ट निगरान और रज़ाकारों को बाकायदा तरबियत भी दी गई कि पौधों को कैसे लगाएं ताकि वो कामयाब होकर निकले और खुश्क होने से बच जाए। फॉरेस्ट कंजर्वेटर शौकत फयाज का कहना है कि मौसम सर्मा में चित्राल के लोग खाना पकाने और खुद को सर्दी से बचाने के लिए लकड़ी जलाते हैं, जिससे जंगलात पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ता है। अगर इन लोगों को मुतबादिल ईंधन के तौर पर सस्ती बिजली या गैस फराहम की जाए तो जंगलात पर काफी हद तक बोझ कम हो सकता है। वाहिद हल अगर हम उसको बचाना चाहते हैं कि कम्यूनल लैंड पर भी ओक बच जाए तो चित्राल के लोगों को अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी देनी चाहिए। अपने पैगाम में फॉरेस्ट के एहलकारों ने कौम पर जोर दिया कि हर पाकिस्तानी को चाहिए कि एक पौधा जरूर लगाए ताकि मुल्क में जंगलात की कमी पर काबू पाया जा सके और ये दरख्त हमारे माहौल पर भी निहायत मस्बत असरात डालते हैं। चित्राल के महकमा जंगलात के एहलकार चित्राल गोल नेशनल पार्क में 3000 दियार के पौधे लगा रहे हैं। जब ये पौधे बड़े होकर तनाव दरख्त बनेंगे तो यहाँ पे मरखोर और दीगर जंगली हयात को मौसम सर्मा में भी खुराक आसानी से मिलेगी और उनसे उनका तादाद भी बढ़ सकेगा।
फारूकी, सच न्यूज़ चतराल। चकवाल की तहसील चुआ सैदन शाह के सरकारी स्कूल में नए ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब में स्कूल के तालबात समेत मुख्तलिफ टैबलो पेश किए गए। देखते हैं राजा साकिब अब्बास की रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर चकवाल कुरतुलैन मलिक ने चकवाल की तहसील चुआ सैदन शाह के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल डंडोत में 9 तामीर शुदा कमरों पर मुश्तमिल इजाफी ब्लॉक का इफ्तिताह किया। इस मौका पर मारूफ समाजी शख्सियत राजा मुजाहिद अफसर AC चुआ सैदन शाह के अलावा दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस मौका पर तकरीब का इनेकाद भी किया गया जिसमें वालिदैन ने शिरकत की जबकि स्कूल के तालबात ने मुख्तलिफ टैबलो पेश किए। तकरीब से खिताब करते हुए राजा मुजाहिद अफसर और डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि इजाफी कमरों की तामीर से स्कूल इंतजामिया को तदरीसी सरगर्मियों में काबिल जिक्र सहूलत मुयस्सर आएगी। उन्होंने कहा कि कमरों की तामीर में राजा मुजाहिद अफसर और मुखर्रर अफराद के ताउन काबिल तहसीन है। तकरीब के इख्तिताम पर डिप्टी कमिश्नर कुरतुलैन मलिक, राजा मुजाहिद अफसर AC चुआ सैदन शाह ने यादगार शोहदा के अहाता में प्लांट फॉर पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत पौधा भी लगाया। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़ चकवाल। गुर्बत और महंगाई सैयद मोहम्मद बिलाल के इलाज की राह में रुकावट बन गई। डेरा इस्माइल खान का रिहायशी गुर्दों की बीमारी में मुब्तला मुतासरा शख्स इमदाद के लिए किसी मसीहा का मुंतजिर है। देखते हैं मोहसिन सलीम की रिपोर्ट। डेरा इस्माइल खान का रिहायशी सैयद मोहम्मद बिलाल तवील अरसे से गुर्दों की बीमारी में मुब्तला है। बिलाल के दोनों गुर्दे फेल हो चुके हैं जिनके इलाज पर 40 से 50 लाख के करीब खर्चा आता है। मोहम्मद बिलाल 3 साल आर्मी में मुलाजमत करने के बाद बीमारी के बायस फौज से मुलाजमत छोड़ना पड़ी। इस मौके पर सैयद मोहम्मद बिलाल का कहना था कि अपने इलाज पर लाखों रुपए की रकम खर्च कर चुका हूँ, अब इतनी सिकत नहीं रही कि मजीद इलाज जारी रख सकूँ। मेरे माशी हालात बहुत ख़राब हैं और अब कोई काम नहीं कर सकता। मेरा नाम सैयद मोहम्मद बिलाल है और मेरे तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसा हुआ है मेरे दोनों गुर्दे फैले लास्ट स्टेज पे। मेरा BP की वजह से मैं CMH गया था, उधर वैसे BP मेरे सर में दर्द था और BP चेक करने के लिए गया था तो उसने CT स्कैन कराया, टेस्ट कराया। उसके बाद डॉक्टर कह रहा था कि आपके गुर्दे बिल्कुल लास्ट स्टेज पे और आपके गुर्दे दोनों फैले। किराए के मकान में रहने वाला सैयद मोहम्मद बिलाल का एक बेटा और घर में कोई और कमाने वाला नहीं है। गुर्दों का ट्रांसप्लांट ज़रूरी है। बिलाल के वालिद मजदूरी करते हैं। घर वालों की इस्तात नहीं कि वो अपने फूल जैसे नौजवान बेटे का इलाज कर सकें। बिलाल और इसके अहल खाना ने इलाज के लिए तमाम साहिब इस्तात अफराद और हुकूमत से माली इमदाद की अपील की है। कैमरामैन अफराज सियाब के साथ मोहसिन सलीम, साइट TV, डेरा इस्माइल खान। लोअर दीर में तैमरगिरा रेस्ट हाउस में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। नई हल्का बंदियों के हवाले से तफसीली बहस भी की गई। इसी पर देखते हैं रहमतुल्लाह स्वाति की रिपोर्ट। जमीयतुल उलमा इस्लाम दी लोर ने नई हल्का बंदों के हवाले से तेमरगर रेस्ट हाउस में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जिसमें तमाम सियासी जमातों के कायदीन ने शिरकत की। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में दी लोर में होने वाली नई हल्का बंदियों के हवाले से तफसीली बहस की गई और शुरका ने दी लोर के तमाम नई हल्का बंदियों पर सख्त तशवीश का और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए मज़कूरा हल्का बंदियों को मुस्तरद किया और नई हल्कों बंदियों के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। इलेक्शन के मुताबिक हमें हल्का बंदियाँ चाहिए और वहाँ बैठकर इस्लामाबाद में हमें हल्का बंदियों में और इसमें रद्द बदल काबिल कबूल नहीं है। लोअर दीर में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई, ये डीलिमिटेशन हुई है। इस पर तकरीबन तमाम पार्टियों ने अपने कंसर्न शो किए हैं, वो इस डीलिमिटेशन से खुश नहीं है। इस मौका पर मुकर्ररून का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने दी लोर के ऐसे हल्का बंदियाँ तश्कील दिए है जिस पर तमाम जमातों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन दी लोर के तमाम नई हल्का बंदियों का असरिनौ जायजा लेकर इस पर नजरसानी करे और ऐसी हल्का बंदी तश्कील दे जिस पर तमाम सियासी जमात मुत्तफिक हो। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में ये मुतालिबा किया गया कि हमारे पुराने हल्के बरकरार रखे जाए और इस पर इलेक्शन कराए। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तेमरगरा, लोअर दीर। आपको बताएं कि लाल सुहानरा का नेशनल पार्क खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। यहाँ मुख्तलिफ किस्म के परिंदे पाए जाते हैं। इसी खूबसूरती के ऊपर रिपोर्ट करेंगे राशिद लतीफ़। लाल सुहानरा नेशनल पार्क जो कि पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में अपनी मकबूलियत से जाना जाता है। लाल सुहानरा नेशनल पार्क में मौजूद मोर अपनी खूबसूरती की मिसाल आप हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म में यहाँ पाए जाते हैं। सियाह दूर दराज से यहाँ घूमने आते हैं। लाल सुहानरा नेशनल पार्क में इस वक्त हम आए हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत माहौल है। यहाँ पर जो है ना हर किस्म की
आराइश का इंतजाम किया हुआ है। हम दूर दराज से यहाँ पर घूमने आए हैं। लाल चुआना नेशनल पार्क का माहौल बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर मौजूद पाइड मोर पाकिस्तान के किसी जंगल में नहीं पाया जाता। इसका नीला और सफेद रंग होता है। इसकी अफजाइश का मौसम मार्च से अगस्त होता है। मादा 6 से 10 अंडे देती है। लाल चुआना पार्क को मोरों का मस्कन भी कहा जाता है। कैमरामैन यूसुफ सऊ के साथ राशिद लतीफ लाग, सच न्यूज़, लाल चुआना। हवेली लखा में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। सब डिवीजन लेस्को की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ 18 मुकदमात दर्ज किए गए। मजीद तफसीलात बता रहे हैं अमीर खान की इस रिपोर्ट में। हवेली लखा वजारत तवानाई की हिदायत पर वापरा लेस्को का बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। हवेली सब डिवीजन रूरल लेस्को की जानब से बिजली चोरों के खिलाफ 18 मुकदमात रजिस्टर्ड करवा चुके हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानब से बिजली चोरी की रोकथाम के लिए जो कैंपेन शुरू की गई है वो बड़ी तेज़ी से और बिजली चोरी रोकने के लिए हमारी टीम में हम वक्त तैयार रहती हैं और सुबह शाम इसके लिए काम कर रहे हैं। गुज़श्ता 20 दिनों में लाइन लेसेस की मद में 21 लाख यूनिट्स की बचत हुई और 23 करोड़ रुपए रनिंग रिकवरी भी हो चुकी है और बिजली चोरी में 80% तक कमी वाक़या हो चुकी है। पुलिस की जानब से वापड़ा अफसरान और इनके एहलकारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है। कैमरा टीम उस्मान अली के साथ अमीर खान, सच न्यूज़, हवेली लखा। आज का पाकिस्तान में मुख्तलिफ मौज़ूआत आपने मुलाहिज़ा किए। फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए सच टीवी।